ایسے خطرناک آدمیوں کو میں 2 آدمیوں کے ساتھ کیسے چھاپ سکتا ہوں؟ اوور، سکھدیو نے کہا۔ تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول موجود ہیں، تم ان پر فائر کر دینا۔ ویسے بھی انہیں توقع نہ ہوگی کہ تم وہاں موجود ہو سکتے ہو، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہوں گے۔ اوور، سردار سنگھ نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ اوور، سکھدیو نے کہا۔ یہ بات نہیں، ایجنٹ لوگ انتہائی تیز ترار اور شاطر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں ہم لوگ انتہائی چوکنا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ وار کرنے کے بجائے فوری طور پر واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر اطمینان سے کوئی نیا منصوبہ تیار کریں۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر وہ یہاں مارے گئے تو پھر میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ ویسے بھی ابھی ہمارے ان کی تعداد کے بارے میں علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آدھے یہاں رہ جائیں اور آدھے بچ کر واپس چلے جائیں۔ سردار سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ انہیں بے ہوش کر کے ان پر فائر کھول دوں گا، اس طرح وہ میرے خلاف کوئی اقدام کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ اوور، سکھدیو نے کہا۔ فوری طور پر ان پر فائر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بے ہوش لوگ کہیں نہیں بھاگ سکتے، انتظار کرنا، ورنہ ان کے بقیہ ساتھی فائرنگ کی آواز سن کر تم پر اچانک حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اوور، سردار سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، تم فکر نہ کرو، اب میں انہیں یہاں سنبھال لوں گا، تم بٹام جزیرے کی فکر کرو۔ اوور، سکھدیو نے کہا۔ یہاں کی فکر مت کرو، اگر وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہیں بے ہوش کر کے مجھے کال کر دینا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے سردار سنگھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سکھدیو نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے وہاں رکھ کر وہ ہیلی کاپٹر سے باہر آ گیا۔ بٹام جزیرے کی طرف سے واپسی پر وہ اس جزیرے کی 2 سمتوں سے آ سکتے ہیں، اس لیے ایک طرف تم پہرا دو اور دوسری طرف رام شری پہرا دے گا، جبکہ میں یہیں رکوں گا۔ سکھدیو نے کہا۔ رام شری کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ نہیں آیا، نارائن نے کہا۔ وہ وہیں رک گیا ہوگا، جا کر اسے بلا لاؤ، سکھدیو نے کہا اور اس کے ساتھ اس سمت اشارہ کر دیا جس طرف سے وہ آیا تھا، اور نارائن سر ہلاتا ہوا ادھر کو بڑھ گیا۔ بڑے ظالم لوگ ہیں، شیلا کو بھی ظالموں نے مار ڈالا، کاش وہ اسے ہلاک نہ کرتے، سکھدیو نے نارائن کے جاتے ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس سوائے بڑبڑانے اور افسوس ظاہر کرنے کے اور کیا چارہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نارائن اور رام شری دونوں واپس آ گئے۔ تم ادھر شمال کی طرف اور تم ادھر مشرق کی طرف پہرا دو گے، کسی درخت پر چڑھ جانا، یہ لوگ یقیناً کسی لانچ پر ہوں گے، اس لیے لانچ تمہیں دور سے ہی واپس آتی دکھائی دے جائے گی۔ جیسے ہی لانچ نظر آئے تم نے فوری طور پر مجھے اطلاع دینی ہے، اور سنو، خود اپنے طور پر کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا۔ سکھدیو نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے احکامات کی مکمل تعمیل ہوگی، دونوں نے کہا، اور سکھدیو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں علیحدہ علیحدہ سمتوں میں چلے گئے، جبکہ سکھدیو دوبارہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ وہ پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال سامنے آ جائے تو وہ فوری طور پر ہیلی کاپٹر اڑا لے جائے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک اس نے دور سے نارائن کو تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ باس، ادھر سے 2 غوطہ خور اچانک سمندر سے نکل کر اوپر جزیرے پر آ رہے ہیں، نارائن نے قریب آ کر کہا۔ تو سکھدیو نے جلدی سے ساتھ والی سیٹ پر پڑا ہوا تھیلا اٹھایا اور اچھل کر نیچے اتر آیا۔ غوطہ خور؟ اوہ، تو وہ سمندر کی گہرائی میں سفر کرتے رہے، اسی لیے ہمیں ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران وہ نظر نہ آئے تھے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، جلدی کرو۔ سکھدیو نے تھیلے سے وہ مخصوص پستول نکالا جس پر بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس کے کیپسول بھرے ہوئے تھے، اور پھر وہ نارائن کے ساتھ اس طرف کو چل پڑا جدھر نارائن پہرا دے رہا تھا، اور پھر وہ کنارے کے قریب پہنچ کر اچانک ٹھٹک کر رک گئے جب انہوں نے غوطہ خوروں کا لباس پہنے ہوئے 5 افراد کو کنارے پر چڑھ کر اوپر گھاس میں لیٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب بے حد تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، وہ اس انداز میں لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے سر سکھدیو اور نارائن کی طرف تھے، جبکہ ان کی ٹانگیں سمندر کی طرف تھیں۔ سکھدیو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کا رخ ان کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ کھٹک کی قدرے اونچی آواز سنائی دی اور پستول میں سے کیپسول نکل کر ان آدمیوں کی طرف بڑھا
वो पांचों शायद खटक की आवाज सुनकर बिजली की इसी तेजी से उठकर मुड़े ही थे कि उसी लम्हे कैप्सूल उनके करीब गिरकर फट गया और सुर्ख रंग का गुबार उन सब के गिर्द तेजी से फैलता चला गया और वह पांचों दोबारा नीचे गिरकर साफ हो गए। सखदेव ने पूरी तसल्ली कर लेने के लिए एक और फायर कर दिया, लेकिन वो सब उसी तरह बेहिस हिरकत पड़े रहे। इनके और साथी ना हो, नारायण ने कहा। नहीं, अगर होते तो अब तक आ चुके होते। तुम जाकर रामश्री को बुला लाओ, सखदेव ने कहा। आप इन्हें गोलियों से हलाक कर दें, अब तो ये बेबस पड़े हुए हैं, नारायण ने कहा। अभी नहीं, सरदार सिंह से बात कर लूं, फिर हो सकता है कि वो उनसे पूछगिछ करना पसंद करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इन्हें चीफ बॉस को भिजवा दे। ये उसका शोभा है। तुम जाकर रामश्री को बुला लो, सखदेव ने कहा तो नारायण सर हिलाता हुआ मुड़ा और उस तरफ को बढ़ गया जिधर रामश्री गया था। सखदेव इस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो दोनों वापस ना आ गए। तुम यहाँ ठहर कर इनका ख्याल रखो, मैं जाकर सरदार सिंह से बात करता हूँ, फिर जैसे ही वो कहेगा वैसे ही करेंगे, सखदेव ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। अगर आप हुक्म दें तो मैं हेलीकॉप्टर से ट्रांसमीटर यहाँ ले आऊं, रामश्री ने कहा। नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा, सखदेव ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर हेलीकॉप्टर में सवार होकर ट्रांसमीटर उठा चुका था। उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सखदेव कॉलिंग, ओवर, सखदेव ने कॉल देते हुए कहा। यस, सरदार सिंह बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद सरदार सिंह की आवाज सुनाई दी। सरदार सिंह, क्या रिपोर्ट है, ओवर, सखदेव ने कहा। यहाँ तो अभी तक कोई नहीं आया। मेरे आदमी पूरे जजीरे पर और उसके चारों किनारों पर पहरा दे रहे हैं, न ही अभी तक कोई लॉन्च नजर आई है, ओवर, सरदार सिंह ने कहा। तुम्हारे इन किनारों पर मौजूद आदमियों की वजह से बटाम जजीरा बच गया है, सरदार सिंह। यहाँ 5 गोताखोर वापस पहुंचे हैं और मैंने उन्हें बेहोश कर दिया है। वह लॉन्च की बजाय समंदर की गहराई में तैरते हुए वशाकू से बटाम पहुंचे होंगे, लेकिन चूंकि हम पहले ही अलर्ट थे और तुमने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए चारों तरफ किनारों पर भी आदमी तैनात कर दिए, इसलिए उनका दाव नहीं चल सका और वो वापस आ गए। अब क्या ख्याल है, इन्हें गोलियों से ना उड़ा दूं, या तुम इनसे कोई पूछगिछ करोगे, या ऐसा भी हो सकता है इन 5 को इसी बेहोशी के आलम में चीफ बॉस तक पहुंचा दिया जाए, ओवर। सखदेव ने बात के आखिर में खुद ही सारी तजवीज भी पेश कर दी। सिर्फ 5? नहीं सखदेव, सिर्फ 5 आदमी इतने बड़े मिशन पर नहीं आ सकते, लाजमन इनके और साथी भी होंगे, ओवर, सरदार सिंह ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ तो 5 ही वापस आए हैं, ओवर, सखदेव ने जवाब देते हुए कहा। ओ, फिर ऐसा करो कि इन 5 को इसी बेहोशी के आलम में हेलीकॉप्टर पर लाद कर यहाँ ले आओ। मैं यहाँ इनकी रूहों से भी असल हकायक मालूम करवा लूंगा। मेरा ख्याल है कि ये लोग ग्रुपों में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि एक ग्रुप इस तरफ से आया हो और दूसरा किसी और तरफ से आ रहा हो, इसलिए इनसे असल हकायक मालूम करना जरूरी है, ओवर, सरदार सिंह ने कहा। ठीक है, मैं ले आ रहा हूँ इन्हें, ओवर, सखदेव ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, सरदार सिंह ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सखदेव ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर ट्रांसमीटर वापस रखकर वो हेलीकॉप्टर से नीचे आ गया। लेकिन इमरान साहब, न जाने ये जगह जजीरे के किस हिस्से में है और जजीरा कितना बड़ा है और बाहर कितने अफराद हों। अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाए तो ज्यादा आसानी होगी, सिद्दीकी ने कहा। यहाँ तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही और मेरा ख्याल है कि इस जजीरे पर शायद गाड़ी की जरूरत ही महसूस ना की जाती हो। बहरहाल हमने तो बाहर ही करना है। ज्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों के जिस्मों पर कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए लिबास की वजह से हमें पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन बाहर की सूरत हाल का वाकई हमें कोई इल्म नहीं, इमरान ने कहा और साथ ही वो सीढ़ियां उतरता हुआ सहन में पहुंच गया। उसके साथी भी नीचे उतर आए और फिर वो सब तेजी से फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। फाटक अंदर से बंद था। इमरान ने आगे बढ़कर फाटक की कुंडी हटाई और इसे थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। बाहर एक दायरे की सूरत में इमारतें बनी हुई थी और 50 के करीब मुसल्लह अफराद मुख्तलिफ इमारतों के साथ मौजूद थे, जबकि एक इमारत के सामने बरामदा सा बना हुआ था और उसके सामने एक जीप खड़ी थी
इसी लम्हे इमरान को दूर से किसी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। आवाज से महसूस हो रहा था कि हेलीकॉप्टर जजीरे की तरफ आ रहा है और फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर सामने वाली इमारत के अकब से नमूदार हुआ और इमारतों के उस दायरे के दरमियान आकर फिजा में मुअल्लक हो गया। इस लम्हे इमरान ने बरामदे वाली इमारत से सरदार सिंह और सुखदेव को निकलकर तेजी से जीप में बैठते हुए देखा। सरदार सिंह ने जीप में बैठने से पहले हवा में हाथ लहराया। हेलीकॉप्टर भी अब इधर ही आएगा और जीप भी, और हमने हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना है। फाटक के साथ दीवार से लगकर खड़े हो जाओ। इमरान ने सर अंदर करके कहा और इसके साथ ही उसने आहिस्ता से फाटक बंद करके अंदर से कुंडा लगा दिया और फिर वो सब तेजी से चारदीवारी के साथ कुछ लगाकर खड़े हो गए। उस लम्हे हेलीकॉप्टर उनके सरों से गुजर कर उस इमारत के सहन में आकर मुअल्लिक हो गया और फिर बाहर से जीप की तेज हॉर्न की आवाज सुनाई दी। यह हेलीकॉप्टर नीचे क्यों नहीं उतर रहा? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उस लम्हे हॉर्न मुसलसल बजने लगा। फाटक तेजी से खोलकर साइडों में हो जाओ, इमरान ने कहा तो चौहान और नुमानी ने खिसक फाटक का कुंडा हटाया और इसका पट खोलकर साइडों में उसके पीछे हो गए। इसके साथ ही जीप तेजी से अंदर दाखिल हुई और सीधी आगे बरामदे की तरफ बढ़ती चली गई। उसी लम्हे फजा में मुअल्लक हेलीकॉप्टर भी नीचे उतरने लगा। इमरान के इशारे पर चौहान और नुमानी ने दोबारा फाटक बंद कर दिया। जीप रुकते ही सुखदेव और सरदार सिंह जीप से नीचे उतरे। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर भी एक साइड पर उतर गया और उसमें से एक अधीर उम्र आदमी उछल कर नीचे उतर रहा था। सरदार सिंह और सुखदेव तेजी से उस आदमी की तरफ लपके ही थे कि इमरान ने अपने साथी की तरफ देखकर इशारा किया और इसके साथ हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का ट्रैकर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही सरदार सिंह और सुखदेव और वो अधीर उम्र आदमी तीनों उछलकर नीचे गिरे और बुरी तरह तड़पने लगे, जबकि सदीकी और खाबर दोनों बिजली की तेजी से दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की अखबी साइडों से होते हुए उसकी तरफ बढ़ते गए, जबकि इमरान ने इन्हें कवरेज देने के लिए एक बार फिर फायर कर दिया और नीचे गिरकर तड़पने वाले तीनों अफराद गोलियों की जद में आकर उछले और फिर साख्त हो गए। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की दूसरी साइड से उसका पायलट उछलकर नीचे उतर रहा था कि सिद्दीकी, जो हेलीकॉप्टर की दूसरी साइड पर पहुंच चुका था, उस पर छलांग लगा दी और उसे अपने साथ लेता हुआ जमीन पर जा गिरा। दूसरे लम्हे वो उछलकर उठा ही था कि उसके आंखों में मौजूद खाबर ने नीचे गिरे हुए उस आदमी पर फायर खोल दिया और नीचे गिरकर उठने की कोशिश करता हुआ वो आदमी तड़प कर साख्त हो गया। इमरान और बाकी साथी भी दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए। हेलीकॉप्टर खाली था। जल्दी करो, जल्दी हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ, इमरान ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही वो खुद भी उछलकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। उसके साथ ही भी बिजली की तेजी से हेलीकॉप्टर में सवार हो गए तो इमरान ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर एक झटके से फसा में बुलंद होता चला गया। इमरान हेलीकॉप्टर को तेजी से ऊपर उठाता चला गया। उसने देखा कि इस इमारत से बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद तेजी से दौड़ते हुए फाटक की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। इमरान हेलीकॉप्टर को ऊपर ही ऊपर ले गया और फिर उसने तेजी से आगे बढ़ की तरफ बढ़ा दिया और तकरीबन 5 मिनट की तेज परवाज के बाद वो जजीरे को क्रॉस करके समंदर पर पहुंच गए। इमरान ने हेलीकॉप्टर का रुख निशाकुल जजीरे की तरफ मोड़ लिया। इस बार तो हम बाल बाल बच गए हैं, वरना, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा और हेलीकॉप्टर में मौजूद सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर निशाकुल जजीरे पर पहुंच गया तो इमरान ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारना शुरू कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर एक खुली जगह पर उतर गया। इमरान ने हेलीकॉप्टर का इंजन बंद किया था कि अचानक हेलीकॉप्टर में नस ट्रांसमीटर जाग उठा और उससे तेज सीटी की आवाज निकलने लगी तो इमरान समेत सब साथी भी अख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, चीफ बॉस कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर से एक तेज आवाज सुनाई दी। इमरान भी अख्तियार उछल पड़ा क्योंकि वो बोलने वाले की आवाज से उसे पहचान गया था। ये जगदेश था जो कर्नल फरीदी का साथी था और कर्नल फरीदी के जानने के बाद जीरो फोर्स को छोड़ गया था। यस, सरदार सिंह बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने सरदार सिंह की आवाज में जवाब देते हुए कहा। सरदार सिंह, तुमने जीरो ट्रांसमीटर पर कॉल रिसीव क्यों नहीं की, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। जो ट्रांसमीटर ही जीरो हो मिस्टर जगदेश, तो उस पर कॉल कैसे रिसीव की जा सकती है, ओवर। इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में कहा और दूसरी तरफ से खामोशी तारी हो गई। तुम कौन हो? कौन बोल रहे हो तुम, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से बुखलाए हुए लहजे में कहा गया। तुम यकीनन मेरी आवाज पहचान गए हो जगदेश, और अगर तुम्हारी यादाश्त चीफ बॉस बनने के बाद कमजोर हो चुकी है तो फिर मैं तारुफ करा देता हूँ कि मेरा नाम अली इमरान है। तुमने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई भयानक साजिश की है और तुम्हारा ये बटाम जजीरा तो यकीनन
चंद मिनट बाद सफा हस्ती से गायब हो जाएगा, लेकिन अब तुम भी मेरे हाथों से ना बच सकोगे। ओवर। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो, मैं चीफ बॉस हूँ, जगदीश नहीं। और तुम कौन हो? क्या तुम पाकिस्ता एजेंट हो? तुमने कैसे मेरे नायब के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? मेरा नायब अशोक कहाँ है सरदार सिंह? और सखदेव कहाँ है? ओवर। दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया, ओह तो ये बात है, इस हेलीकॉप्टर से निकलने वाला अशोक था, वही अशोक जो तुम्हारे साथ पहले जीरो फोर्स में था। तो तुम लोगों ने जीरो फोर्स छोड़कर अलग तंजीम बना ली है। तो फिर सुन लो, तुम्हारा नायब अशोक, सरदार सिंह और सखदेव तीनों हलाक हो चुके हैं, और कुछ देर बाद तुम्हारा जजीरा भी तबाह हो जाएगा, वहां मौजूद जाली करेंसी के स्टॉक और मशीनरी समेत। ओवर। इमरान ने कहा, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से था, और सीक्रेट सर्विस के दायराकार में तो जाली करेंसी का जुर्म आता ही नहीं, फिर तुम कहां से पहुंच गए हो? ओवर। इस बार जगदीश ने कहा, मैं सीक्रेट सर्विस के लिए काम जरूर करता हूँ, लेकिन सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं हूँ। जिस तरह सीक्रेट सर्विस मेरी खिदमत हासिल कर लेती है, इस तरह दूसरी तंजीमें भी मेरी खिदमत हासिल कर लेती हैं, और इन खिदमत के लिए मेरी सिर्फ एक शर्त होती है कि काम पाकिस्तान की बका के लिए हो, और तुमने जो साजिश की है वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, और 4 स्टार्स इसके खिलाफ काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने मेरी खिदमत हासिल कर ली, और नतीजा अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। ओवर। इमरान ने कहा, ओह ओह, काश मुझे अगर पहले से मालूम हो जाता कि तुम इस ग्रुप के साथ हो, तो मैं तुम्हारा कोई और इंतजाम कर देता। मुझे तो सरदार सिंह ने बताया था कि काफिस्तान सीक्रेट सर्विस के एक ग्रुप को उन्होंने पकड़ा है। मैंने काफिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुल्क से बाहर है, इसलिए मैंने अपना नायब अशोक को जो साहिल समंदर पर मौजूद था फौरी तौर पर जजीरे पर भेज दिया, ताकि वो वहां जाकर सही सूरत हाल मालूम करके मुझे इतला दे। ठीक है, तुमने किसी न किसी तरह इस हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया होगा, और मेरे चंद आदमी भी मार दिए होंगे, लेकिन तुम जजीरा तबाह नहीं कर सकते, किसी सूरत भी नहीं। वहाँ हमारे इंतजामात इंतहाई सख्त हैं, और ये भी सुन लो कि अब रॉकहेड क़यामत तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क़यामत तक। ओवर। जगदीश ने चीखते हुए कहा, तुम तो सिर्फ रॉकहेड हो, यानी सिर्फ तुम्हारा सर चट्टान का बना हुआ है। तुम्हारा बॉस कर्नल फरीद तो मुकम्मल हार्डस्टोन था, और तुम उसके साथ काम करते रहे हो, इसके बावजूद भी तुम इस तरह की अहमकाना बातें कर रहे हो। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्नल फरीदी मुसलमान होने की वजह से तुम्हारे खिलाफ इंतहाई हद तक ना जा सकता था, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ, समझे? और रॉकहेड तुम्हारे तस्वुर से भी ज़्यादा ख़तरनाक तंजीम है, और तुम देखना कि जो काम काफिस्तान की दूसरी एजेंसी नहीं कर सकी, वो रॉकहेड करेगी। पाकिस्तान पर रॉकहेड ऐसी क़यामत तोड़ेगी कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा रॉकहेड के नाम से दहशत ज़दा होकर कब्रों में पड़ा चीखता रहेगा। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से चीखते हुए और ये जहानी अंदाज में कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया, तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, और फिर वो सब हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आए। इसका मतलब है इमरान साहब कि ये भी काफिस्तानी की कोई सरकारी एजेंसी है, हम तो इसे आम से जराइम पेशा तंजीम समझते रहे हैं। सदीकी ने कहा, मेरा भी पहले यही ख्याल था, लेकिन अब इस जगदीश की बातों ने असल हकीकत जाहिर कर दी है। इमरान ने कहा, और फिर वह सब तेजी से किनारे की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान की आंखें एक झटके से खुली, तो पहले चंद लम्हों तक तो उसका जहन माउफ सा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जागने लग गया। फिर से बेहोश होने से पहले का मंजर याद आ गया, जब वो 4 स्टार्स के साथ वापिस कशाकू जजीरे पर पहुंचा था, और फिर वो जजीरे पर चढ़कर आराम करने के लिए लेटे ही थे कि खटक की आवाज सुनाई दी थी, और वो उठकर मुड़े ही थे कि उनके जहन पर स्याह चादर सी फैलती चली गई थी। गोया उसने सांस रोक लिया था, लेकिन उसके बावजूद उसके जहन पर स्याह चादर फैलती चली गई, और उसकी आंखें खुली थी। इस लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उन्हें देखकर चौंक पड़ा कि वो एक दीवार के साथ खड़ा है। उसके दोनों हाथ ऊपर नस कुंडों में फिक्स कर दिए गए थे, इस तरह के उसके हाथ कुंडों में फिक्स थे। उसने गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि उसके बाकी साथी भी उसी अंदाज में दीवार के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी गर्दनें ढलकी हुई थी। इमरान समझ गया कि मखसूस जहनी वर्जिशों की वजह से
उसकी ज़हनी दफाई कुव्वत ने उसे वक्त से पहले होश दिला दिया है, और चूंकि होश में आते ही उसके ज़हन पर कुछ लम्हों तक धुंध सी छाई रही थी, इसलिए वो समझ गया था कि वहाँ जजीरे पर उन्हें गैस से बेहोश किया गया था। क्योंकि गैस से बेहोश होने के बाद आदमी जब होश में आता है तो चंद लम्हों तक उसका जहन मौफ ही रहता है, जबकि चोट लगने से बेहोश होने के बाद आदमी जब होश में आता है तो उसका शऊर फौरी तौर पर बेदार हो जाता है। कमरा खासा बड़ा था। सामने 4-5 कुर्सियां भी रखी हुई थी। एक तरफ दरवाजा था जो बंद था। इसके अलावा कमरे में और किसी किस्म का कोई सामान ना था। इमरान ने अपनी उंगलियां मोड़कर कुंडे का बटन तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि इस किस्म की दीवारों में फिक्स्ड कुंडे लामेहाला बटन से खुलते और बंद होते थे, लेकिन जब काफी देर तक टटोलने के बावजूद वो कोई बटन ना तलाश कर सका तो वो हैरान रह गया कि फिर उसकी कलाइयां कैसे इस कुंडे में डाली गई होंगी। उसने फिर उंगलियों की मदद से टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर तक तो कोशिश के बावजूद जब वो नाकाम रहा तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या इन कुंडों में आम रूटीन से हटकर कोई और सिस्टम रखा गया है। लेकिन वो सिस्टम क्या हो सकता था, ये बात उसकी समझ में न आ रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक स्याह रंग की लंबी सी गिरने वाली बोतल थी। अंदर दाखिल होते ही जब उस नौजवान की नजरें इमरान पर पड़ी तो वो बेख्तियार ठठक कर रह गया। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम कैसे होश में आ गए? नौजवान के मुंह से बेख्तियार निकला तो इमरान मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि तुम्हारी इस बोतल में होश में लाने वाली दवा कम हो और मैं इस दवा की कमी की वजह से बेहोश ही रह जाऊं, इसलिए बखुद होश में आ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम हैरत अंगेज आदमी हो, वरना इस गैस से तो खुद ब खुद कोई होश में आ ही नहीं सकता। मैं सरदार सिंह और सखदेव को जब ये बताऊंगा तो वो दोनों मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। नौजवान ने कहा, तुम फिक्र ना करो, जब मैं खुद तुम्हारी बात की तस्दीक करूंगा तो वो इन्हें यकीन करना ही पड़ेगा। इमरान ने जवाब दिया तो नौजवान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसने इमरान के साथ कुंडों में जकड़े हुए सदीकी की नाक की तरफ बोतल बढ़ाई। उसने उसका ढक्कन उतारा और बोतल का दाहिना सदीकी की नाक से लगा दिया। चंद मिनट तक ऐसा करने के बाद उसने बोतल हटाई और आगे बढ़ गया। सबसे आखिर में खाबर था। उसकी नाक से बोतल का दहाना लगाने के बाद जब उसने बोतल हटाई तो उसने ढक्कन बंद कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। नारायण, नौजवान ने मुड़ते हुए जवाब दिया। तुमने सरदार सिंह और सखदेव का नाम लिया है, इसका मतलब है कि हम इस वक्त बटाम जजीरे पर हैं। इमरान ने कहा। हाँ, और हम तुम्हें बेहोश करके वशाकू जजीरे से यहाँ ले आए हैं, जहाँ तुमने मादाम शैला और उसके पूरे ग्रुप का कत्लेआम कर दिया था। नौजवान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। 1 मिनट रुक जाओ नारायण, इमरान ने कहा तो दरवाजे के करीब पहुंचा हुआ नारायण रुक गया। क्या बात है? नारायण ने सवालिया लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छे आदमी लगते हो। यह हकीकत है कि हमने किसी का कत्लेआम नहीं किया। मैं और मेरे साथी तो समंदर से निकलकर जजीरे पर पहुंचे ही थे कि हमें बेहोश कर दिया गया। तुमने कहा कि तुम हमें उस जजीरे से यहाँ ले आए हो, क्या तुम तफसील बता सकते हो? इमरान ने कहा। तफसील क्या बतानी है? बॉस सरदार सिंह ने मुझे और राम श्री दोनों को बॉस सखदेव के साथ हेलीकॉप्टर में वशाकू जजीरे पर भेजा, क्योंकि वहाँ मादाम शैला ट्रांसमीटर कॉल रिसीव ही ना कर रही थी। हम हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जब जजीरे पर पहुंचे तो वहाँ मादाम शैला और उसके पूरे ग्रुप की लाशें मौजूद थी। हम वहाँ तुम्हारा इंतजार करते रहे और फिर तुम 5 आदमी अचानक गोताखोरी के लिबास में समंदर से बाहर निकले और किनारे पर लेट गए। बॉस सखदेव ने तुम पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की और तुम सब बेहोश हो गए, तो हम तुम्हें हेलीकॉप्टर में लाद कर बटाम जजीरे पर ले आए और यहाँ तुम्हें जकड़ दिया। अब बॉस सरदार सिंह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम सबको होश में ले आऊं, क्योंकि चीफ बॉस यहाँ पहुँचने वाले हैं और चीफ बॉस के आने पर तुम्हारा फैसला किया जाएगा कि तुम्हें मौत के घाट उतारना है या तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जाया जाए। नारायण ने तफसील बताते हुए कहा। हमें यहाँ आते हुए कितनी देर हो गई है? इमरान ने पूछा। 1 घंटा तो हो ही गया होगा। क्यों? तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? नारायण ने चौंक कर पूछा।
बस वैसे ही पूछ रहा था ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ। इमरान ने जवाब दिया तो नारायण ने इस तरह कंधे उचका दिए जैसे उसे इमरान की बात समझ में ना आई हो, और फिर वो दरवाजा खोलकर वापस चला गया। इसका मतलब है कि सुपर डायनामाइट फटने में अब सिर्फ 1 घंटा रह गया है और हमें इस 1 घंटे में हर सूरत में यहाँ से निकलना है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उसने उंगलियों को मोड़कर फौलादी कड़ों को टटोलना शुरू कर दिया। उसी लम्हे उसके साथियों के कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो सब एक एक करके होश में आते जा रहे थे। इमरान साहब, ये हम कहाँ पहुँच गए हैं? बारी बारी सबने एक ही सवाल किया। बटाम जजीरे पर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साथ ही उसने नारायण से पूछी गई तफसील भी दोहरा दी। ओह, फिर तो हम भी खतरे में हैं। आपने कितना वक्त लगाया था सुपर डायनामाइट पर? सदीकी ने परेशान होकर पूछा। 3 घंटों का वक्त, और अब 2 घंटों से ऊपर वक्त गुजर चुका है, इमरान ने जवाब दिया तो सबके चेहरों पर मजीद परेशानी के तासुरात उभर आए। इन कुंडों को भी समझ नहीं आ रही, इनमें कोई बटन भी मौजूद नहीं है। यूं लग रहा है जैसे ये हमारी कलाइयों के गिर्द रख कर ढाले गए हों। इमरान ने कहा तो सब इख्तियार चौंक पड़े। और फिर इससे पहले कि कोई मजीद बात करता, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक दूसरे के पीछे 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से आखिर में आने वाले 2 अफराद में से एक के हाथ में कोड़ा पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे के हाथ में मशीन गन थी, जबकि पहले दाखिल होने वाले दोनों अफराद खाली हाथ थे। तुम पाकिस्तानी एजेंट हो? उनमें से एक ने गौर से इमरान और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा। तहजीब के मुताबिक बात करने से पहले अपना तारुफ कराया जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम सरदार सिंह है और ये मेरा साथी सकदेव है। हम जजीरा बटाम के इंचार्ज हैं। मुझे नारायण ने बताया है कि तुम खुद ब खुद होश में आ गए थे और तुमने नारायण से यहाँ तक पहुँचने की पूरी तफसील भी मालूम कर ली है, इसलिए ये तफसील दोहराने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे साथी मादाम शैला और उसके पूरे ग्रुप का कत्लेआम किया है। इसके बावजूद तुम तहजीब की बातें भी तुम ही कर रहे हो, सरदार सिंह ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। तुम्हारे आदमी नारायण ने पहले भी हम पर किसी मादाम शैला और उसके साथियों के कत्लेआम का इल्जाम लगाया था, और मैंने उसे भी ये जवाब दिया था कि ये काम मैंने नहीं किया। हम तो पहली बार इस विशाकुल जजीरे पर पहुंचे थे और वहां पहुंचते ही बेहोश कर दिए गए, और अब हमें यहाँ होश आया है और अब तुमने भी हम पर यही इल्जाम लगा दिया है। दूसरी बात ये कि हमारा पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। हमारे चीफ शागुल को इत्तला मिली थी कि विशाखू और बटाम जजीरे पर कोई गैर कानूनी धंधा हो रहा है, तो उसने हमें चेकिंग के लिए भेजा था, इमरान ने जवाब दिया। तो सरदार सिंह और उसका साथी सकदेव दोनों भी इख्तियार चौंक पड़े। तुम्हारा ताल्लुक काफिस्तानी सीक्रेट सर्विस से है? ये कैसे मुमकिन है? तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम झूठ बोल रहे हो, सरदार सिंह ने हुसीले लहजे में कहा। तुम ऐसा करो कि हमारे चीफ शागिर से बात कर लो, वो तुम्हें खुद ही बता देगा कि हम कौन हैं, इमरान ने जवाब दिया। हमें क्या जरूरत है किसी से बात करने की? तुम चाहे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक हो रखते हो या पाकिस्तानी एजेंट हो, मौत बहरहाल तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, सरदार सिंह ने हुसीले लहजे में कहा। क्या ये तुम्हारे चीफ बॉस का हुक्म है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। चीफ बॉस का? हाँ, वो खुद यहाँ आ रहे थे, लेकिन अभी उनकी कॉल आई है कि वो इंतहाई जरूरी काम में मसरूफ हो गए हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते, और उन्होंने ही हुक्म दिया है कि तुमसे तमाम मालूमात हासिल करके तुम्हें हलाक कर दिया जाए, सरदार सिंह ने जवाब दिया। तो मालूमात हासिल करने के लिए तुम कोड़ा और मशीन गन ले आए हो? सुने सरदार सिंह, हमारा ताल्लुक वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और यहाँ हम बाकायदा हेडक्वार्टर की तरफ से आए हैं। अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम जानते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे चीफ बॉस के साथ क्या होगा। तुम्हारे इन जजीरों पर भी सीक्रेट सर्विस कयामत बनकर टूट पड़ेगी और तुम्हारे चीफ बॉस पर भी हौलनाक अजाब टूट पड़ेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अहमकों जैसे काम ना करो, बल्कि हमें कुछ कहने से पहले अपने चीफ बॉस से मशवरा कर लो, वो यकीनन तुमसे ज्यादा बेहतर फैसला करेगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारा ताल्लुक काफिस्तानी सीक्रेट सर्विस से है? सरदार सिंह ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो इमरान की बात से ज़हनी तौर पर बहरहाल मुतासिर हो चुका है। सबूत? तुम्हारा चीफ बॉस हमारे चीफ शागिर्द से वसूल कर लेगा,
तुम इस बात की फिक्र मत करो। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा, सखदेव मेरे साथ आओ। सरदार सिंह ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अपने साथी से कहा और फिर वो तेजी से वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, इमरान ने कहा तो सरदार सिंह और सखदेव दोनों दरवाजे के करीब से पलट पड़े। क्या बात है? सरदार सिंह ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे हाथ और पैर इन कड़ों से निकाल दो और इस कमरे को बाहर से बंद करके अपने मुसल्ले आदमी बाहर खड़े कर दो? हमारे जिस्म सख्त तकलीफ में है। ये कड़े हमारी कलाइयों में इंतहाई तंग है, या फिर इनकी जगह खुले कड़े इस्तेमाल कर लो। आखिर हम सरकारी आदमी हैं, कोई मुजरिम या दुश्मन एजेंट तो नहीं है कि तुम हमारे साथ इस किस्म का सलूक करो। इमरान ने कहा, नारायण। सरदार सिंह ने नारायण से मुखालिब होकर कहा तो वो साथ ही मशीन गन पकड़े खड़ा था। यस बॉस, नारायण ने बहुत बाला लहजे में कहा, इन कड़ों को मामूली सा खोल दो, ये वाकई इन कलाइयों में बेहद तंग है। सरदार सिंह ने कहा और मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे सखदेव और उसके पीछे वो कोड़ा बरदार भी बाहर चला गया। नारायण दरवाजे के करीब दीवार में नस्ब स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने स्विच बोर्ड के निचले हिस्से के दरमियान में उंगली से प्रेस किया तो बोर्ड किसी ढक्कन की तरह ऊपर को उड़ता चला गया और नीचे बाकायदा एक छोटी सी मशीन नस्ब थी और 2 बल्ब जल बुझ रहे थे। नारायण ने एक नॉब को आहिस्ता से घुमाया तो इमरान को महसूस हुआ कि उसकी कलाइयां और पैरों के गिर्द मौजूद कड़े खुद ब खुद चौड़े हो रहे थे। क्या तुम इन्हें इसी मशीन से खोलते और बंद करते हो? इमरान ने पूछा। हाँ, नारायण ने स्विच बोर्ड का ढक्कन वापस बंद करते हुए कहा। अभी ये तंग है, इन्हें थोड़ा सा और खोल दो। इमरान ने कहा, सॉरी, इसे ज्यादा ये नहीं खोल सकते। नारायण ने कहा और मशीन गन उठाए तेजी से बाहर निकल गया। मैंने हाथ निकाल लिए हैं इमरान साहब। अचानक नुमानी की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे उसके बाजू तेजी से नीचे हो गए और सब उसे चौंक कर देखने लगे, लेकिन पैर तो नहीं निकल सके। फिर इस स्विच बोर्ड तक तुम कैसे पहुंचोगे? सिद्दीकी ने परेशान होते हुए कहा। यही बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, नुमानी ने कहा। अपनी कमीज की खुफिया जेब की तलाशी लो, उसमें यकीनन 3S मौजूद होगा। इमरान ने कहा तो नुमानी चौंक पड़ा। गोताखोरी के लिबास वो उसके जिस्मों से उतार लिए गए थे और अब वो असल लिबासों में थे। नुमानी ने जल्दी से अपनी कमीज के बटन खोले और अंदर हाथ डाला। हाँ, ये मौजूद है। चंद लम्हों बाद नुमानी ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में 2 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी पतली सी सुनहरे रंग की पत्ती मौजूद थी। इसका कोना मोड़कर इसे इस स्विच बोर्ड पर मारो और ख्याल रखना तुम्हारा निशाना खता नहीं होना चाहिए। इमरान ने कहा तो नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया। उसने तेजी से इस पतली का एक कोना मोड़ा और इसके साथ ही उसका बाजू पूरी कुव्वत से घुमा और पतली बिजली की सी तेजी से उड़ती हुई ठीक उस स्विच बोर्ड से जा टकराई। एक खौफनाक और कान फाड़ धमाका हुआ और दूसरे लम्हे इमरान और इसके साथियों के हाथ और पैरों के गिर्द मौजूद कड़े खटाक की आवाजों के साथ ही खुलकर दीवार के अंदर गायब हो चुके थे और वो सब बिजली की इसी तेजी से आगे बढ़े ही थे कि दरवाजा एक धमाके से खुला और मशीन गनों से मुसल्ले 2 आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए। लेकिन उसी लम्हे इमरान और सिद्दीकी उन दोनों पर टूट पड़े और दूसरे लम्हे वो दोनों मुसल्ले आदमी चीखते हुए फर्श पर गिरे और तड़प कर साख्त हो गए। उनकी मशीन गन अब इमरान और सिद्दीकी के हाथों में थी। बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए इमरान ने हाथ उठाकर अपने साथियों को इशारा किया और वो सब तेजी से दरवाजा की साइडों में होते चले गए। उसी लम्हे 3 मुसल्ले आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए तो खावर, नुमानी और चौहान उन पर झपट पड़े, जबकि इमरान और सिद्दीकी मुड़कर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर एक बंद राहदारी थी जो एक तरफ से बंद थी, जबकि दूसरी तरफ सीढ़ियां ऊपर को जाती दिखाई दे रही थी। वो दोनों बिजली की तेजी से दौड़ते हुए इन सीढ़ियों की तरफ बढ़े और फिर बैक वक्त दोनों 2 सीढ़ियां फैलाते हुए ऊपर पहुंचे ही थे कि अचानक 2 आदमी तेजी से एक साइड से निकलकर सामने आ गए। चूंकि वो खासी तेजी में थे, इसलिए मुड़ते ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने ही लगे थे कि इमरान का बाजू घुमा और वह दोनों ही एक दूसरे से टकरा कर चीखते हुए उछल कर मुंह के बल आखिरी सीढ़ी पर गिरे और फिर पलट कर नीचे जा गिरे। खावर और नुमानी दोनों के हाथ में मौजूद मशीन गनों के बट पूरी कुव्वत से उनके सरों पर पड़े और उन दोनों की हालत से घुटी घुटी चीखें निकली और चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साख्त हो गए। इमरान ने सर बाहर निकाला तो एक बरामदा सा था
जिसके दोनों साइडों पर कमरों के दरवाजे थे, जबकि सामने सहन और उसके बाद 4 दीवारें थी, जिसका फाटक बंद था, लेकिन ना ही बरामदे में कोई आदमी था और ना ही सहन में। इमरान तेजी से बाहर बरामदे में आ गया। उसके पीछे उसके साथी भी बाहर आ गए। कमरों के दरवाजे बंद थे और बाहर से उन्हें लॉक कर दिया गया था। अलबत्ता एक दरवाजा खुला हुआ था। इमरान और उसके साथी तेजी से इस खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन यह कमरा खाली पड़ा हुआ था। उसके अंदर मेज और कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन कोई आदमी ना था। हमने फौरी तौर पर इस जजीरे से बाहर निकलना है। सुपर डायनामाइट ब्लास्ट होने में अब बहुत कम वक्त रह गया होगा, और अगर हम जजीरे से बाहर ना निकल सके तो फिर हमारी मौत इसी जजीरे पर वाक़ई हो जाएगी। इमरान ने इधर उधर देखते हुए बेचैन लहजे में कहा, लेकिन इमरान साहब, न जाने ये जगह जजीरे के किस हिस्से में है और जजीरा कितना बड़ा है। इसका मतलब है इमरान साहब कि ये भी काफिलिस्तान की कोई सरकारी एजेंसी है। हम तो इसे आम सी जुराइम पेशा तंजीम समझते रहे हैं, सिद्दीकी ने कहा। मेरा भी पहले यही ख्याल था, लेकिन अब इस जगदीश की बातों ने असल हकीकत जाहिर कर दी है, इमरान ने कहा, और फिर वो सब तेजी से किनारे की तरफ बढ़ते चले गए। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हमें घेरने की कोशिश की जाएगी, और फिर जजीरा बटाम भी अभी तक तबाह नहीं हुआ, चौहान ने कहा। देखो क्या होता है। वैसे इस वक्त तक यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते जब तक जजीरा बटाम तबाह ना हो जाए, इमरान ने कहा। कहीं वो सुपर डायनामाइट चेक तो नहीं हो गया या फिर खराब हो गया हो, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, चेक हो जाता तो ये लोग लाजमन इसका जिक्र करते या फिर जगदीश ही बात कर देता, और खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम चूंकि बेहोश रहे हैं, इसलिए हमें वक्त का सही अंदाजा नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर से पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक दूर से तेज गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी और वो सब ठटक कर रुक गए। वो इस वक्त किनारे की तक पहुंच चुके थे। दूसरे लम्हे खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ, और उसके साथ ही समंदर में जैसे आग का एक फवारा सा निकल कर आसमान की तरफ बुलंद होता दिखाई दिया। वशाकू जजीरा भी इस खौफनाक धमाके से इस तरह लरसने लगा जैसे खौफनाक जलजला आ गया हो। इसके साथ ही समंदर की पानी की लहरें ऊपर को उठकर जैसे पहाड़ जैसी बुलंदी से तेजी से वशाकू जजीरे की तरफ आती दिखाई देने लगी। लेकिन चूंकि जजीरे की सतह समंदर से काफी बुलंद थी, इसलिए उन्हें फिक्र ना थी, और फिर ये लहरें तकरीबन किनारे के करीब आकर मुसलसल किनारे से टकराने लगी। धमाके मुसलसल हो रहे थे, लेकिन अब आसमान पर गर्द और धुएं के दबीज बादल से फैलते नजर आने लगे थे। इस धुएं और गर्द में बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर उड़ते दिखाई दे रहे थे। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐन वक्त पर यह हेलीकॉप्टर मिल गया था, वरना इतनी जल्दी हम वहां से ना निकल सकते, सिद्दीकी ने कहा। चलो अब हमें फौरी यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना अभी काफिलिस्तान की बहरिया और फजाइया इस सारे इलाके को घेर लेगी। जल्दी करो, इमरान ने कहा, और मुड़कर वो तेजी से दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ, और फिर वो तेजी से बैरुल अक़वामी समंदर की तरफ बढ़ता चला गया। जजीरा क्रॉस करके इमरान ने हेलीकॉप्टर की बुलंदी बेहद कम कर दी थी, और अब हेलीकॉप्टर सतह के बिल्कुल करीब से उड़ता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। अलबत्ता हेलीकॉप्टर की रफ्तार बेहद तेज थी, और थोड़ी देर बाद वो काफिलिस्तानी समंदरी हदूद क्रॉस करके बैनुल अक़वामी समंदरी हदूद में दाखिल हो गए। क्या आप इस हेलीकॉप्टर पर अब पाकिस्तान जाएंगे? वहां हमें हिट न कर दिया जाए, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, हम बहरिया के मखसूस अड्डे पर उतर जाएंगे और वहां से तुम्हारे चीफ को कॉल करके सारी सूरत हाल बता देंगे। इस तरह हमारी वापसी इत्मीनान से हो जाएगी, इमरान ने जवाब दिया, और वो दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। कमरे में एक आदमी इंतहाई बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे। ये कमरा दफ्तर से अंदाज में सजाया हुआ था। इस आदमी के होंठ भींचे हुए थे और चेहरा बिगड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा था। ये जगदीश था, जो कर्नल फरीदी की जीरो फोर्स में रह चुका था। कमरे में मौजूद मेज पर ट्रांसमीटर और फोन मौजूद थे। वो बार बार फोन की तरफ देखता और फिर टहलना शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई देने लगी तो वो बिजली की इसी तेजी से मुड़ा
اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو جگناتھ کالنگ اوور. ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ایک وحشت بری آواز سنائی دی. یس چیف باس اٹینڈنگ یو. کیا رپورٹ ہے؟ اوور. جگدیش نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا. اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بے چینی یکلخت جیسے غائب ہو گئی تھی. چیف باس غضب ہو گیا ہے. جزیرہ بٹام خوفناک اور دل دہلا دینے والے دھماکے سے پھٹ پڑا ہے. پورا جزیرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. میرا ہیلی کاپٹر اس جزیرے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ جزیرہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا. یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی ایٹم بم مارا گیا ہو. ہم بھی بال بال بچ گئے ہیں چیف باس. اگر ہمارا ہیلی کاپٹر وہاں اتر جاتا یا اس کے اوپر پہنچ چکا ہوتا تو ہم بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتے. اوور. جگناتھ نے انتہائی وحشت بھرے لہجے میں کہا تو جگدیش نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے. اس کی آنکھوں میں یکلخت غصے کے چراغ سے بھڑک اٹھے تھے. تو یہ عمران جو کچھ کہہ رہا تھا وہ درست تھا. سارا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. میں اس کا خون پی جاؤں گا. جگدیش نے غصے کی شدت سے بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا. ہیلو ہیلو چیف باس آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اوور. دوسرے لمحے جگناتھ کی ایک بار پھر آواز سنائی دی. تم اشوک والے ہیلی کاپٹر کا پتہ چلاؤ کہ وہ کہاں موجود ہے. اوور. جگدیش نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا. وہ تو وہاں کہیں نظر نہیں آیا باس. اوور. جگناتھ نے جواب دیا. تم احمق آدمی، تمہارا کیا خیال تھا کہ دشمنوں نے ہیلی کاپٹر ہوا میں روکا ہوا ہوگا؟ وہ یقیناً اسے بٹام سے نکال کر مشاکو لے گئے ہوں گے. فوراً وہاں پہنچو اور اگر وہ وہاں موجود ہوں تو اسے گنوں سے اڑا دو. نونسنس. جگدیش نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. میں ہیلی کاپٹر سے ہی کال کر رہا ہوں باس. میں ابھی معلوم کرتا ہوں. اوور. جگناتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا. جلدی معلوم کرو اور اگر یہ لوگ مل جائیں تو انہیں ہیلی کاپٹر سمیت اڑا دو. اوور اینڈ آل. جگدیش نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر دیا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے گھوم کر میز کی دوسری طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گیا. سب کچھ تباہ ہو گیا. سب کچھ. نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہوا. جگدیش نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا. اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جواری اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد آخر میں اپنی آخری پونجی بھی ہار بیٹھا ہو. پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوبارہ ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو جگناتھ کالنگ. اوور. رابطہ قائم ہوتے ہی جگناتھ کی آواز سنائی دی. یس چیف باس اٹینڈنگ یو. اوور. جگدیش نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. باس میں نے بین الاقوامی سمندری حدود تک چیک کر لیا ہے. وہاں کہیں بھی اشوک والا ہیلی کاپٹر نظر نہیں آ رہا. البتہ وشاکو جزیرے پر مادام شیلا اور اس کے گروپ کی لاشیں پڑی سڑ رہی ہیں. اوور. جگناتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نکل کر بہرحال تم ایسا معلوم کرو کہ جب بٹام جزیرے پر حالات پرسکون ہوں تو وہاں اتر کر معلوم کرو کہ وہاں یہ دھماکے اور تباہی کیوں اور کیسے ہوئی ہے اور وہاں کیا بچا ہے اور کیا نہیں. اوور. چیف باس بٹام جزیرہ تو صفحہ ہستی سے مل چکا ہے. جس جگہ جزیرہ تھا وہاں اب سمندری پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے اور جزیرے کی چٹانیں اور پتھر بھی غائب ہو چکے ہیں. البتہ ہلکی پھلکی چیزیں اور لاشیں ہر طرف تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اوور. جگناتھ نے کہا تو جگدیش بے اختیار اچھل پڑا. کیا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا جزیرہ ہی ناپید ہو جائے؟ اس قدر ہولناک تباہی تو کسی بم سے نہیں آ سکتی. کیا وہاں ایٹم بم پھٹا ہے؟ اوور. جگدیش نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا. باس جو دھماکے میں نے سنے ہیں اور جس طرح میں نے جزیرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے مجھے تو واقعی یہی لگتا ہے کہ وہاں ایٹم بم ہی پھٹا ہے یا پھر سپر ڈائنامائٹ. شاید مادام شیلا وہاں بھول گئی اور اسے کسی نے چارج کر دیا ہو. اوور. جگناتھ نے کہا تو جگدیش بے اختیار چونک پڑا. کیا کہہ رہے ہو؟ سپر ڈائنامائٹ مادام شیلا کے پاس تھا. اوور. جگدیش نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. یس چیف باس مادام شیلا ایکریمیا سے ایک سپر ڈائنامائٹ جس پر ٹائم چارجر نصب تھا چرا کر لائی تھی. اس کا کہنا تھا کہ وہ اس سے دشمن کا کوئی بہت بڑا اور وسیع اڈا تباہ کرے گی.
वो मोहतरमा ये डायनामाइट सबको दिखाया करती थी। ये इस कदर ताकतवर था कि एटम बॉम्ब जैसी ही कुव्वत ही से फटता था। मादाम शैला हर वक्त इसे अपने साथ रखती थी। ओवर, जगन्नाथ ने जवाब दिया। ओ, अब मेरी सारी बात समझ में आ गई। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर वशाकू जजीरे पर उतरो। वहां मादाम शैला और इसके ग्रुप का असला अभी तक मौजूद होगा। वहां तलाश करो कि वो सुपर डायनामाइट मौजूद है या नहीं, और फिर मुझे फौरन रिपोर्ट दो। ओवर, जगदीश ने चीखते हुए कहा। यस चीफ बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो जगदीश ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ये तो अपने ही हाथों सब कुछ तबाह हो गया। वेरी सैड। काश मुझे पहले इत्तला मिल जाती कि शैला के पास एक सुपर डायनामाइट मौजूद है, जगदीश ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रांसमीटर पर एक बार फिर कॉल आई और जगदीश ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जगन्नाथ कॉलिंग। ओवर। जगन्नाथ की आवाज सुनाई दी। यस चीफ बॉस, सेंडिंग यू। ओवर। जगदीश ने कहा। बॉस, मैंने तलाशी ले ली है। असले के जखीरे में सुपर डायनामाइट मौजूद नहीं है और यहाँ के एक कैबिन में असला रखा गया था। वहाँ एक पेटी में से इस असला इस तरह निकाल कर रखा गया है जैसे इसी पेटी की तलाशी ली गई हो सकता है कि ये सुपर डायनामाइट इसी पेटी में ही मौजूद रहा हो। ओवर, जगन्नाथ ने कहा। ठीक है, मजीद क्या कहा जा सकता है? तुम हेडक्वार्टर वापस आ जाओ। ओवर एंड ऑल, जगदीश ने कहा। ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, लेकिन उसी लम्हे पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो जगदीश ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जगदीश ने कहा। सर, प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल है। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। बात कराओ, जगदीश ने कहा। हेलो, पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। बात कराओ। मैं चीफ ऑफ रॉक हेड बोल रहा हूँ, जगदीश ने कहा। बात करें। पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। जगदीश बोल रहा हूँ जनाब, जगदीश ने मौतबाना लहजे में कहा। मिस्टर जगदीश, मुझे अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि जिस जजीरे पर आपकी तंजीम का कंट्रोल था वह तबाह हो गया है। ये क्या सिलसिला है? प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। यस सर, आपकी दुरुस्त रिपोर्ट मिली है। ये सब कुछ पाकिस्तान के एजेंट अली इमरान ने किया है, जगदीश ने कहा। इमरान? क्या मतलब? उसका आपकी तंजीम से क्या ताल्लुक? आपकी तंजीम तो बज़ाहिर गैर सरकारी है और आप जिस मिशन पर काम कर रहे थे वो गैर सरकारी था, और इमरान तो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, वज़ीर आज़म ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, इसी बात पर हम मात खा गए हैं। आपने जाली करेंसी वाला मिशन हमारे तंजीम के जिम्मे लगाया तो मैंने इस पर काम शुरू कर दिया। हमने पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली। बटाम जजीरे पर 10 मशीनें लगा दी जहां जाली करेंसी छापी जा रही थी कि जैसे अच्छे माहिरीन भी शनाख्त न कर सकते। हमारा प्रोग्राम यही था कि हम पूरे पाकिस्तान में ये जाली करेंसी फैला दें और इसकी असल करेंसी उसके बदले मंगवा कर बटाम जजीरे पर जला दें कि मुझे इत्तला मिली कि पाकिस्तान में हमारे आदमी पकड़े गए हैं। मैंने दूसरे आदमी हायर कर लिए। दूसरे आदमी पकड़ लिए गए तो मैंने फौरी तौर पर मंसूबा रोक दिया ताकि नया सेटअप कायम किया जाए कि हमें इत्तला मिली कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स के चंद एजेंट बटाम जजीरे के खिलाफ काम करने आ रहे हैं। मैंने बटाम जजीरे पर और इसके साथ ही वशाकू जजीरे पर हिफाजत के मुकम्मल इंतजाम कर लिए। इस दौरान बटाम जजीरे से मेरे आदमियों ने इत्तला दी कि उन्होंने वशाकू जजीरे से 5 एजेंट पकड़े हैं और इन्हें बटाम जजीरे पर कैद कर लिया है। मैंने उनकी हलाकत के अहकामात दे दिए, लेकिन फिर मेरे आदमियों ने इत्तला दी कि वो लोग अपने आप को काफिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमी बता रहे हैं। मैं ये बात सुनकर बेहद हैरान हुआ। मैंने फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि चीफ जनाब शागुल साहब मुल्क से बाहर हैं। मेरा एक आदमी अशोक साहिल समंदर पर हमारे एक अड्डे में मौजूद था। वो काफिस्तान सीक्रेट सर्विस में तवील अरसे तक काम कर चुका था। मैंने उसे हेलीकॉप्टर पर फौरी तौर पर जजीरे पर पहुंचने का हुक्म दिया ताकि वो इन्हें शिनाख्त कर सके। फिर जब मैंने उससे राब्ता कायम किया तो मालूम हुआ कि अशोक की जगह वो इमरान बोल रहा है और इस इमरान ने बताया कि उसने अशोक को हलाक करके हेलीकॉप्टर उसे छीन लिया है और अब जजीरा बटाम तबाह हो जाएगा। मैंने उसकी बात पर यकीन न किया तो उसने बताया कि वो फ्रीलांसर है
اور اس کی خدمات پاکیشا کے ایک اور گروپ نے حاصل کرنی ہے۔ میں نے اپنے نائب جگناتھ کو جزیرے بٹام پر بھجوایا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے مجھے رپورٹ دے سکے، لیکن اس نے بتایا کہ جزیرہ اچانک کسی آصف فشاں کی طرح پھٹ گیا اور یہ تباہی اس قدر خوفناک تھی کہ جزیرہ بٹام کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ عمران اشوک کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر پہلے ہی نکل گیا تھا۔ میں نے مزید انکوائری کرائی تو پتا چلا کہ راک ہیڈ کی مادام شیلا کے پاس ٹائم چارجر سپر ڈائنامائٹ تھا جو اس نے اپنے پاس خفیہ طور پر رکھا ہوا تھا۔ مادام شیلا اپنے گروپ کے ساتھ وشاکو جزیرے پر حفاظت کے لیے تعینات تھی۔ عمران اور اس کا گروپ وہاں پہنچا تو انہوں نے مادام شیلا اور اس کے گروپ کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا۔ وہاں سے سپر ڈائنامائٹ حاصل کر کے غوطہ خوری کرتے ہوئے وہ بٹام جزیرے پر پہنچے اور انہوں نے وہاں سپر ڈائنامائٹ نصب کر دیا۔ واپسی پر وہ پکڑے گئے اور پھر میرے آدمیوں اور اشوک کو ہلاک کر کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے اور سپر ڈائنامائٹ کی وجہ سے پورا جزیرہ تباہ ہو گیا۔ جگدیش نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس جعلی کرنسی کی تیاریوں پر جو اربوں روپے کافرستان کے خرچ ہوئے وہ سب ضائع ہو گئے۔ جزیرہ بھی صفحہ ہستی سے ناپید ہو گیا۔ تمہارے گروپ کی مادام شیلا، اس کے تمام آدمی مارے گئے اور تمہارا ہیلی کاپٹر ان کے ہاتھ لگ گیا، اور یہ سب کچھ صرف 5 افراد نے کیا ہے۔ یہی ہے تمہاری تنظیم راک ہیڈ جس پر کافرستان کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، سر اس عمران کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ویسے جناب، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس عمران کا خاتمہ کر کے ہی دم لوں گا۔ جگدیش نے کہا، لیکن راک ہیڈ تنظیم کی پلاننگ جب تم نے پیش کی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تم کرنل فریدی کے اسسٹنٹ رہے ہو اور تمہاری وجہ سے پاکیشا سیکرٹ سروس اپنے بے شمار مشنز میں ناکام رہی ہے اور اب اس سروس کا ایک فری لانسر ایجنٹ ایک لحاظ سے تمہاری پوری تنظیم کے منہ پر تھپڑ مار کر چلا گیا ہے اور تم احمقوں کی طرح مجھے اپنی ناکامی کی رپورٹ دے رہے ہو۔ پرائم منسٹر کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران کی لاش آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ جگدیش نے کہا، اوکے۔ پرائم منسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اس عمران نے واقعی راکٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور سوائے اس ہیڈ کوارٹر کے اور باقی بچا کیا ہے، لیکن اب میں دیکھوں گا کہ یہ اور کتنے دن زندہ رہتا ہے۔ جگدیش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کر دیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ گنیش کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جگدیش بول رہا ہوں، گنیش سے بات کراؤ۔ جگدیش نے اپنی اصل آواز میں کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، گنیش بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جگدیش بول رہا ہوں گنیش۔ جگدیش نے کہا، ہاں کیا ہوا، خیریت، کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ گنیش غضب ہو گیا، راک ہیڈ کے سارے گروپ ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، وزیر اعظم صاحب علیحدہ ناراض ہو گئے ہیں اور یہ سب کچھ اس پاکیشائی علی عمران کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو عمران کو اچھی طرح جانتے ہو، تمہاری اس کے ساتھ کرنل فریدی کے زمانے میں انتہائی بے تکلفی تھی، تم میری مدد کرو۔ میں اس عمران کا کٹا ہوا سر وزیر اعظم کے قدموں میں لا کر ڈالنا چاہتا ہوں۔ جگدیش نے کہا، کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جگدیش؟ تم پہلے تو اتنے احمق نہیں تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے عمران وہاں سڑک پر اپنا سر زمین پر رکھیں انتظار میں ہوگا کہ تم جا کر اس کا سر کاٹو اور لا کر وزیر اعظم کے قدموں میں ڈال دو؟ لیکن عمران اور تمہارا ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ تم جن معاملات میں ملوث ہو ان معاملات میں تو داخل نہیں دے سکتا۔ گنیش نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا، بس ہو گیا اور اب مجھے اس کا دعویٰ کرنا ہے۔ تم مدد کرو پلیز۔ مجھے لگتا ہے کہیں پرائم منسٹر صاحب میرے کورٹ مارشل کا حکم نہ دے دیں۔ جگدیش نے کہا، تم مجھے تفصیل بتاؤ کہ تمہارا مشن کیا تھا جس کے خلاف عمران حرکت میں آ گیا۔ گنیش نے کہا تو جگدیش نے اسے تفصیل بتا دی۔ جعلی کرنسی کے اسکینڈل میں تو سیکرٹ سروس کام نہیں کرتی، یہ تو سینٹرل انٹیلیجنس کا کام ہے، اور میں نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ
باقی شاہی سینٹرل انٹیلیجنس نے جعلی کرنسی پھیلانے والے گروپوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور اس کام کا سہرا علی عمران کے دوست سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے سر پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے یہ سارا کام سپرنٹینڈنٹ کے لیے کیا ہے اور یقیناً اس کے ساتھی بھی سینٹرل انٹیلیجنس سے ہی ہوں گے۔ لیکن اب تم عمران کو بھول جاؤ، تمہاری بہتری اسی میں ہے، گنیش نے کہا۔ نہیں، میں اسے نہیں بھول سکتا گنیش، میری مدد کرو، جگدیش نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے کہہ کر تمہاری جان بخشی کرا دیتا ہوں، لیکن میں تمہارے ہی فائدے کی بات کر رہا ہوں، تم اسے بھول جاؤ۔ اور سنو، کہیں تم نے اسے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ میرا مطلب ہے اپنی تنظیم راکٹ کے متعلق، گنیش نے کہا۔ اس نے مجھے بطور گنیش میری آواز سے ہی پہچان لیا تھا، لیکن میں نے اس کے سامنے یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ میں جگدیش ہوں۔ لیکن میں نے اسے راکٹ کی طرف سے دھمکی دے رہی تھی کہ اب راکٹ قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور میں کروں گا بھی ایسا ہی، جگدیش نے کہا۔ اوہ ویری سیڈ، تم اس وقت شدید خطرے میں ہو۔ عمران نے لامحالہ اب تمہارے ہیڈ کوارٹر پر وار کرنا ہے، وہ ایسے کام ادھورے چھوڑنے کا قائل نہیں ہے۔ تمہارے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کس کس کو معلوم ہے؟ گنیش نے کہا۔ صرف پرائم منسٹر اور تمہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ راکٹ صرف پرائم منسٹر کے انڈر ہے، جگدیش نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ فی الحال عمران کو بھول جاؤ، اس کے خلاف کام نہ کرو۔ جب کچھ وقت گزر جائے پھر کچھ پلاننگ بنا لیں گے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ رہے پرائم منسٹر صاحب، تو تمہیں معلوم ہے وہ میری بات نہیں ٹال سکتے، میں انہیں فون پر کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے، گنیش نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم میرے بہترین دوست ہو، اس لیے تمہارا مشورہ مان لیتا ہوں، جگدیش نے کہا۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، گڈ بائے، گنیش نے جواب دیا اور جگدیش نے ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ذہنی طور پر بے حد ڈسٹرب ہو چکا تھا، اس لیے اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب جا کر خوب دل بھر کر شراب پیے گا اور پھر اطمینان سے سو جائے گا۔ لیکن ابھی اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ جگدیش اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ جگناث تم؟ اور میرے آفس میں اس انداز میں؟ تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی؟ جگدیش نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مسٹر جگدیش، تمہاری موت کے احکامات صادر ہو چکے ہیں اور اب تمہاری جگہ میں راکٹ کا سربراہ ہوں، جگناث نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے عقب سے ہاتھ سامنے کیا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کس نے احکامات دیے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جگدیش نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم صاحب نے، جگناث نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور سے شعلہ سا نکلا اور جگدیش کو یوں معلوم ہوا جیسے اس کے سینے میں ایک جھٹکے سے گرم سلاخ اندر تک اترتی چلی گئی ہو۔ اس کا جسم جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا، اسی لمحے سے دوسرا شعلہ دکھائی دیا اور ایک اور گرم سلاخ اس کے سینے میں اتر گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے گلے میں اٹک گیا۔ وہ دھماکے سے زمین پر گر چکا تھا۔ اس نے پوری قوت سے گلے میں اٹکے ہوئے سانس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کے ساتھ اس کے ذہن پر جیسے تاریک پردہ سا پھیلا چلا گیا اور اس کے سب احسانات اس سیاہ پردے میں جیسے چھپتے چلے گئے۔ عمران اپنے فلیٹ میں کرسی پر نیم دراز ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ جعلی کرنسی والا مشن بٹام جزیرے کی تباہی کے ساتھ ہی مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، اور سیکرٹ سروس کے پاس ان دنوں چونکہ کوئی مشن نہ تھا، اس لیے عمران کا زیادہ وقت مطالعے میں گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، ذرا آ کر معلوم کرو کہ کون اپنی انگلیوں کی خارش مٹا رہا ہے۔ اسے میری طرف سے کہہ دو کہ خارش کا علاج نیم کے پتوں کا عرق ہوتا ہے، فون کا ڈائل نہیں ہوتا، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ ایسا نسخہ آپ خود ہی بتا دیں، میرے پاس دیت کے 1,70,000 روپے نہیں ہیں۔ باورچی خانے سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔
فون کی گھنٹی مسلسل بجے چلی جا رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے یہ نسخہ استعمال کرنے والا ہلاک ہو جائے گا اور تمہیں قتل خطا کی سزا میں دیت کی رقم دینی پڑے گی؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کیا آپ کے پاس دیت کی رقم 1,70,000 روپے ہے؟ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام گنیش ہے اور میں کافرستان سے بول رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عمران بھی اختیار چونک پڑا۔ ارے تم راکشس؟ تو اب راکشس میرا مطلب ہے شیطان نے بھی فون لگوا لیا ہے۔ ویری گڈ، اسے کہتے ہیں ترقی، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ راکشس نہیں، گنیش، 0 فورس کا گنیش، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ اوہ اچھا، تو تم گنیش ہو، یعنی تمہاری زبان میں دانائی کا دیوتا۔ بہت خوب، تو پھر کوئی دانائی کی بات ہی کر دو، فرماؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں آپ کو اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ کافرستان کی خفیہ تنظیم راک ہیڈ پاکیزہ کے خلاف جعلی کرنسی پھیلانے کے مشن پر کام کر رہی تھی۔ آپ نے نہ صرف پاکیزہ میں اس کا سارا سیٹ اپ ختم کر دیا، بلکہ پاکیزہ کے جزیرہ بٹام کو بھی آپ نے تباہ کر کے اس تنظیم کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ اس تنظیم کا سربراہ جگدیش تھا، اور جگدیش نے آپ کو دھمکی بھی دی تھی کہ راکٹ قیامت تک آپ کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی، میں نے اسے سمجھا دیا تھا، لیکن کافرستان کے پرائم منسٹر نے اسے سزا دے دی اور اس کے نائب جگناتھ کو راکٹ کا سربراہ بنا دیا اور جگناتھ کے ہاتھوں جگدیش کو ہلاک کرا دیا۔ جگدیش میرا گہرا دوست تھا، مجھے اس کی موت پر گہرا دکھ ہوا ہے، اس لیے میں فیصلہ کیا ہے کہ اگر جگدیش نہیں رہا تو اب اس راکٹ کو بھی نہیں رہنا چاہیے، اور جب تک راکٹ کا ہیڈ کوارٹر تباہ نہیں ہوتا، راکٹ پاکیزہ کے خلاف کسی نہ کسی انداز میں کام کرتی رہے گی۔ اس لیے میں نے آپ کو راکٹ کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ہیڈ کوارٹر اشاکو روڈ پر عمارت نمبر 808 کے اندر واقع ہے۔ بظاہر یہ عمارت اشاکو کا کلب کے طور پر پہچانی جاتی ہے، لیکن دراصل اس کے نیچے تہہ خانوں میں راکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ہیڈ کوارٹر کو آسانی سے تباہ کر دیں گے، اس طرح میں اپنے گہرے دوست جگدیش کی موت کا انتقام لے سکوں گا، گنیش نے تیز لہجے میں کہا۔ جیسے جگدیش کی جگہ جگناتھ نے لے لی ہے، ایسے ہی اشوکا کلب کی جگہ گنیش کلب بھی نیا ہیڈ کوارٹر بن سکتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیونکہ آپ نے راکٹ کے ہیڈ کوارٹر کے علاوہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، اور میں نے ہی جگدیش کی سفارش کرا کر یہ تنظیم قائم کرائی تھی۔ کافرستان کی وزارت خزانہ نے اس کی قیام کی منظوری نہ دی تھی اور اس کے لیے فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے میرے کہنے پر اپنے صوابدیدگی فنڈ سے یہ تنظیم قائم کی تھی۔ اگر اس کا مشن کامیاب ہو جاتا تو پھر یقیناً وزیر اعظم صاحب اس کی کارکردگی کی بنا پر اسے سرکاری حیثیت دے دیتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا، گنیش نے کہا۔ کمال ہے، پہلے سنگ بنیاد رکھ کر تم نے اپنے نام کی تختی لگوا لی، اور اب اس کا خاتمہ بالخیر کرنے کا کریڈٹ بھی تم ہی لینا چاہتے ہو۔ یہ تو واقعی دانائی کی بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جگدیش نہ صرف میرا گہرا دوست تھا، بلکہ وہ میرا بہنوئی بھی تھا، اور اس بات کا علم پرائم منسٹر صاحب کو بھی تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کے قتل کا حکم دے کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے میں اب اس کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرا کر پرائم منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں کہ گنیش کیا کر سکتا ہے، گنیش نے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ اور یہ سارا کام تم میرے ذریعے کرانا چاہتے ہو؟ خود ہمت کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے لیے تو جعلی کرنسی والا مشن ختم ہو چکا ہے، اور راکٹ جیسے تنظیموں کے ہیڈ کوارٹر سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ ایسے ہیڈ کوارٹر کافرستان میں نہ جانے کتنے ہوں گے، اور نہ میں ذاتی انتقام کا قائل ہوں اور نہ کسی کا ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے سوری، تم نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، گڈ بائے۔
इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। कर्नल फरीदी न जाने किस तरह ऐसे अहमकों को संभाले रखते थे, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर किताब के सफ़ों पर दोबारा नज़र दौड़ाने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अभी कोई बात रह गई है क्या जनाब राक्षस साहब? इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा। इमरान साहब, मैं ब्लैक ज़ीरो बोल रहा हूँ। ये आप किस राक्षस की बात कर रहे थे? दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। राक्षस शैतान को कहते हैं और शैतान ब्लैक वर्ल्ड का इंचार्ज होता है और ये ब्लैक वर्ल्ड बज़ाहिर कितनी भी ज़बरदस्त दिखाई दे लेकिन हकीकत ज़ीरो होती है। अब बाकी तुम खुद समझ सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका मतलब है कि मैं राक्षस हूँ, और अगर मैं राक्षस हूँ तो बहरहाल आप मेरे चीफ़ हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। तो इमरान भी इसकी खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि अब मैं अपने लिए चेक खुद लिख सकता हूँ। फिर आगा सुलेमान पाशा की ज़ुबान मुबारक साबित हुई। अभी वो 1,70,000 रुपये देत की बात कर रहा था, इमरान ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? ये दीद का जिक्र कहाँ से आ गया? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो शायद मेरे लिए रकम इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि दीद कत्ल ख़ता में देनी पड़ती है और ये मुकर्रर शुदा है। 1,70,000 रुपये इकट्ठे होते ही उसने मेरे वारसों को अदा करके अपनी जान छुड़ा लेनी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, आपसे तो उसने लाखों वसूल करने हैं और आप उसे हर बार तनख्वाह देते हैं, इसलिए शायद वो इसीलिए बंदोबस्त कर रहा होगा कि चलो उसकी सारी तनख्वाह से ही कम से कम आप उसके वारिसों को 1,70,000 देने पर मजबूर हो जाएंगे, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। इतना अक्लमंद होता तो दानिश मंजिल में बैठा होता, इमरान ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार कहका मार कर हंस पड़ा। इसीलिए तो आपके फ्लैट में है, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। तो इस बार भी इमरान के उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंसने पर मजबूर हो गया। ठीक है, यानी अहमकों के लिए मेरा फ्लैट ही रह गया है, इमरान ने हंसते हुए कहा। क्योंकि ब्लैक ज़ीरो का जवाब यही था, चूँकि अक्लमंद नहीं है बल्कि अहमक है, इसलिए इमरान के फ़्लैट में मौजूद है। ये तो आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि आपका फ़्लैट किस लिए है। मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है कि काफिस्तान से नाट्रॉन की कॉल आई है। उसने जगदीश को ढूंढ निकाला है, लेकिन उस जगदीश तक पहुंचने से पहले ही जगदीश एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुका है। उसकी कार एक ऑयल टैंकर से टकरा गई थी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो जगदीश की मौत को छुपाने के लिए वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया गया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या ये एक्सीडेंट फर्जी है? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। तो इमरान ने उसे दिनेश की फ़ोन आने से लेकर उसे होने वाली बातचीत से आगाह कर दिया। आपने खामखा गुनेश को डांट दिया। उसने तो बहरहाल पाकीशा से नेकी की है कि उस खुफिया तंजीम रॉकहेड के हेडक्वार्टर का पता बता दिया है। ये तंजीम किसी भी लम्हे पाकीशा के लिए ख़तरा बन सकती है, ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसने दरअसल अपना इंतकाम लेने के लिए मुझे आलाकार बनाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। हेडक्वार्टर तबाह करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर काफिस्तान इस तंजीम को कायम रखना चाहे तो हेडक्वार्टर कहीं और भी बन सकता है, और इस हेडक्वार्टर का तो हमें इल्म हो गया है, लेकिन दूसरे हेडक्वार्टर का शायद हमें मालूम ना हो सके। जहाँ तक पाकीशा के ख़िलाफ़ उसके किसी मिशन का ताल्लुक़ है तो तुम नाट्रॉन से कह दो कि वो इस हेडक्वार्टर में अपने मुखबिर किसी भी शक्ल में पहुंचा दे, ताकि अगर कल ये तंजीम पाकीशा के ख़िलाफ़ किसी ऐसे मिशन पर काम करे जिससे पाकीशा की सलामती को ख़तरा लाहक हो, तो इसके ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई की जा सके। इस वक्त इसके हेडक्वार्टर समेत उसके सारे आदमी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास उसका जवाब मौजूद होगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपकी ये तजवीज़ वाकई दुरुस्त है। ओके, खुदा हाफिज़, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और इमरान ने भी खुदा हाफिज़ कहते हुए रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चाय की प्याली पकड़ी हुई थी। ये लीजिए जनाब, आपकी ज़ुबान की ख़ारिश का इलाज, सुलेमान ने चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा। ज़ुबान की ख़ारिश? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, जब आप बोलने पर आते हैं तो फिर बोलते ही चले जाते हैं, और ये आपका ही तजवीज़ करदा नुस्खा है, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये तो चाय है, जबकि मैंने नीम के पत्तों का अरक तजवीज़ किया था,
عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ایک گھونٹ تو لے کر دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیم کے پتے زیادہ کڑوے ہیں یا یہ چائے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے چائے کا کپ اٹھایا اور اس طرح جڑتے جڑتے گھونٹ لیا جیسے واقعی اس کا خیال ہو کہ کپ میں چائے کے بجائے نیم کے پتوں کا عرق ہوگا۔ ارے یہ تو میٹھی ہے، جبکہ نیم کے پتوں کا عرق تو شدید کڑوا ہوتا ہے، اور کڑواہٹ ہی دراصل خارش کا علاج ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ چینی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ کڑوی لگتی ہیں۔ سلیمان نے کہا، ہاں معلوم ہے، بلکہ مجھے کیا سب کو معلوم ہے۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے سلیمان کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو۔ اور صبح سے یہ آپ کی 40ویں چائے ہوگی۔ اگر ایک کپ میں 1 چمچ میں چینی شامل ہو تو اب تک آپ کے معدے میں چائے کے ساتھ ساتھ کم از کم 1.5 پاؤ چینی پہنچ چکی ہوگی۔ مسئلہ تو کڑواہٹ کا ہے، زبان پر نہ صحیح، معدے میں ہی صحیح۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ وہ سلیمان کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ وہ اب اسے مزید چائے پینے سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ عمران صبح سے مطالعے میں مصروف تھا اور مسلسل چائے پیے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے دیت کا انتظام کر لیا ہے؟ میرا مطلب ہے 1,70,000 روپے کا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 1,70,000 روپے اس آدمی کا دیت ہوتا ہے جو کام کرتا ہو، تاکہ اس کی غلطی سے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے اس کے کام سے جو آمدنی اسے خاندان کو مستقبل میں مل سکتی تھی، اس کا کچھ حصہ اکٹھا ہی مل جائے۔ اور چائے پینے اور کتابیں پڑھنے سے کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ دیت قتل کی خطا کی مقرر ہے، یعنی کسی کی غلطی سے اگر کوئی دوسرا آدمی ہلاک ہو جائے، خودکشی کی کوئی دیت نہیں ہوتی۔ سلیمان نے منہ بنا کر جواب دیا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں؟ مطالعے جیسے عظیم کام کو خودکشی کہہ رہے ہو؟ کاش تمہیں مطالعے کے فوائد کا علم ہو جاتا تو تم کتابیں پھاڑ کر چولہے میں جھونکنے کے بجائے ان کے مطالعے پر توجہ دیتے۔ عمران نے افسوس بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں مطالعے کی بات نہیں کر رہا، چائے کی پیالیوں کی تعداد کی بات کر رہا ہوں۔ مطالعہ آپ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ چائے کی بجائے دودھ پیا کریں، تاکہ مطالعے سے آپ کے دماغ میں جو خشکی پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو سکے، ورنہ مطالعے اور چائے دونوں کی خشکی مل کر آپ کے سر کو پتھر کی طرح خشک کر دے گی۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ سر پتھر کی طرح خشک، تمہارا مطلب ہے راکٹ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف راکٹ نہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو راکٹ کا ہیڈ کوارٹر کہیں، اور شاید اسی لیے آپ نے اسے تباہ کرنے کے بجائے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سلیمان نے کہا، ارے اس کا مطلب ہے کہ تم باورچی خانے میں بیٹھے کان ادھر ہی رکھتے ہو، لیکن یہ جو سرکاری راز ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ سرکاری راز سننا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے غصے لہجے میں کہا، سرکاری کا مطلب ہے کہ سر پر کاری وار کیا جائے، لیکن آپ نے سر یعنی ہیڈ کوارٹر پر سرے سے ضرب لگانے سے ہی طاہر صاحب کو منع کر دیا، پھر یہ راز سرکاری کیسے ہو گیا؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ راکٹ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا جائے، لیکن اس سے فائدہ؟ اگر تم نے ساری باتیں سنی ہیں تو تم نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ عمران نے چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا، سانپ کی اس خیال سے پرورش کرنا کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا اور اس کا زہر قاتل بن جائے گا اور پھر وہ اگر کاٹے گا تب اسے ہلاک کیا جائے، شاید آپ نے ہی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، ورنہ بزرگ تو کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج ابتدا سے ہی کرنا چاہیے، ورنہ وہ بڑھ کر ناقابل علاج بھی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ہیڈ کوارٹر دوسرا بنایا جا سکتا ہے تو راکٹ کی جگہ راکٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کس کس کی نگرانی کرتے پھریں گے؟ سلیمان نے جواب دیا اور دروازے کی طرف مڑ گیا، اور عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ اسے اصل ایکسٹرو کا حکم سنا سکے کہ راکٹ کوارٹر تباہ کر دیا جائے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ برائی کو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہیے۔ ختم شروع۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔
کوئی اور ناول کی فرمائش کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے ریویوز کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. گڈ بائے.